Hi, good morning, everyone. May I request everyone to please show your videos? Sonika ji, can you hear me? Am I Yeah, audible? yeah, yeah, Yeah? yeah, very much. Yeah. Perfect. So we have Okay. 26 of us here, including me. Yes, and So, I really want Mr. Nitesh Tiwari to actually, introduce you once yes, because I have read a lot, and I really want that Mr. Nitesh Tiwari, if he can, brief something about you, and then probably we can start the session. perfect. Everybody, please, keep your cameras on so that at least she can see that, how, like everybody who all are attending. It'll be really fine. Mr. Nitesh Tiwari, I'm not sure if he's there. Oh, Chetan. Just a second. Give me a second. Nitesh sir, are you there? वो नहीं आया अभी तक और कुछ दिख भी नहीं रहा यस्टरडे की पोस्ट आ रही है एक I guess he's busy somewhere. Yes, probably. Let me just, if I can just request you, if you can, just start the introduction and, we can probably start with the session. Later on, people can start joining. There are 28 people already. Yeah, yeah. Give me a moment. Yeah. Hi, good morning, everyone. I would like to keep it interactive. We'll begin with some issues that you're facing in your life. I am a psychologist by profession, a clinical hypnotherapist, transpersonal regression therapist, trainer, podcaster, and associated with Eternal Hospital Jaipur. I also have my own private practice, a company of psychological services. We call it K Psych Services. So that's a short just about me. Let me know how do you want me, in what language do you want this session to be, Hindi, English, या mix of both? If प्लीज anyone, अनम्यूट करिए अपने आप को और मुझे आंसर दे दीजिए इस छोटी सी बात का. सुनीता जी, As I you guess wish, you ma'am. can. As you wish. As I wish. Yeah. ठीक है, perfect है. सुनीता जी, you were saying something. Yeah, I was just saying that you should prefer the mixed language. Mixed language, perfect है जी. Give me a moment, people are still joining. Okay, okay. meanwhile, I'll keep on admitting them. You can let me know your concerns. How is this work from home going? And let's have a kind of small introduction about each other, like what do you like or anything particular. कोई भी psychological issue जहाँ पे अभी help की जरूरत लग रही है या मैंने तो कुछ prepare किया है, मैं तो वो भी बोल सकती हूँ सीधा. But I want कि पहले आप मुझे कुछ अपने points बता दें, फिर उसको मैं incorporate कर दूँगी. कोई भी. May I, ma'am? Ajay Yes, Tamar here. अजय जी, please Yeah. बताएं. Yeah. Actually, मैम जब से ये लॉकडाउन हुआ और वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो क्या मीटिंग्स वगैरह हमारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो पीपल्स आर फेसिंग इश्यूज विद इंटरनेट एंड लॉट्स ऑफ थिंग हार्डवेयर प्रॉब्लम्स सो उनका थोड़ा सा क्या है वर्किंग आवर में फ्लक्चुएशंस हैं मतलब कभी ज़्यादा लग रहे हैं कभी कम लग रहे हैं अगर उसके पास में रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है सो लोग मेंटली थोड़ा उस चीज़ को पैनिक कर रहे हैं कि अगर उनको 9 बजे या 10 बजे तक अगर रुकना पड़ा ड्यू टू पावर कट और ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज सो उस चीज़ को मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज आ रहे हैं तो ठीक उसको है. कैसे हम हमारे टीममेट्स और जो जूनियर्स हैं उनको कैसे हम उनको इस चीज़ के लिए ओवरकम करवा सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक है हम अजय जी, I have noted this point. Anyone else? So Probably we I got can to know from try. Sonika ji that Yes. maximum the high profile managers and executives are there, Yeah. right? Yeah. Everybody's, and, one thing which I personally feel because being a working woman, yes, because no offenses to any of the males here, no offenses. It is only that, sometimes what happens, we have to keep a balance between home, kids,
office and everything. So it is not a one-way thing or a two-way thing. It is a 3-4-way thing which goes for a female. Being a female, it is expected that, you know, in case if you are at home, you have to cook as well. You have to take care of the kid as well. In case if you are not in home, then everybody will take care. But in case if you are there, it is actually expected out of you. And on the other hand, you have to manage your professional life also, wherein you cannot compromise with that also. So this is a big challenge which I personally feel, though I keep the doors closed, and but it is actually making me, you know, sometimes it makes me sick because there is nobody around to talk about even. Yeah, So I this is understand. one thing. This is one thing. I'm not very sure. I can see Swati, I can see Sunita, and Shilpa. I can see both the females are Yeah. smiling onto Yes, this. yes, Yes, yes. ma'am. Exactly. We are facing the same kind of issue. So, Yeah. And apart Yeah. from this, I personally feel that, you know, it actually happens because a man-to-man conversation, your gestures, and probably, you know, the body language and everything, it actually counts when you are actually into a, you know, face-to-face Hmm. interaction. But when Hmm. it comes to your, through video call or through calls, you cannot see the sentiments and emotions of the person. So अगर किसी ने बहुत आराम से भी बोला है तो आपको लगेगा कि चिल्ला रहा है या कुछ चिल्ला रहा होगा तो भी आपको मतलब you get panic और आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो. You cannot, you know, vent it out also. Hmm. Hmm. I Right. think मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाकी भी बोलो भाई. no, ma'am. Actually, we are facing the same kind of issue which you have mentioned. Like balancing between the family and work becoming very difficult for all of us. True, true. I was Hmm. thinking that write a blog on this working from home for a woman. Wow. So what did you think of writing in that? That what situation I am facing and how I am coming up from that situation. Everything. Okay, great. So we would like to have your little inputs onto that. Sure. So how are you managing that? I think I am before my kids will wake up and all. I manage all the work of home and I cook everything. And after that, I will attend the meetings and all. So it's on me like how can I cut my sleep and all and everything balancing between. Yeah. Yeah, But then if you cut your sleep for long, then it'll exhaust you. yeah. And for that, I am doing meditation in morning. Great. Awesome. Perfect. So this was about the ladies. What about the gentlemen here? They are very happy. Because the wives are in the kitchen. Yes, and they are probably, you know, every day I can see uh, people, you know, putting their WhatsApp status. I'm sorry, but you know, my wife cooked this, and even a nimbu pani bhi banaya hoga, they will put, dekho, put, see, Wow. wonderful, wonderful, this thing by my wife. I mean, वो it's उधर से okay. एटलीस्ट चेयरिंग अप तो कर रहे हैं. That motivates the wives, huh? हाँ, but housewives, हमारे जैसे के husband, they cannot put anything. They can put a pic कि हाँ देखो working wife. Just मैम because of this, yesterday I cooked Maggie and posted into the fourth Facebook. Wow. That today I cooked a special thing that is the Maggie. Hmm. Okay. मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय ये समझता है कि lot of we are working to more than 10 hours Hmm. in that like in office we are working only to 7 to 8 hours. We enjoy that tea break and lunch break, but we are working at a home from home. So then employees something like we are starting working approx at start 10 o'clock and ending at the 8 of again 12 o'clock we are working full day. Lot of the time or almost people's working in 12 o'clock in a day. Hmm. Okay. I think lot of persons have facing same issue maybe. Yes, yes, right, right. I think I got influenced, right? We are working around 12 to 13 hours a day. True, very true. So And generally, it's a generally that is how many hours that you work in normal conditions? it's 8 hours. 8 hours. Okay. So lot of the persons not justified that I can work and 10 o'clock start at 10 o'clock or working at right now 10 o'clock right and night. But some people I am checking the message, some people say in at night working at 2 o'clock.
I don't Some are understand. working The at 2. balancing, Yeah. probably, I think, Kavita ji, the balancing part, which is actually getting missed in everybody's life, I personally think so. The balance is actually gone because in office it is, we have a set routine. Here, you have to get up. आपका commuting time बच रहा है. So, you feel that okay, fine. बैठ जाओ, काम करने बैठ जाओ. Absolutely. कहीं बाहर नहीं जा सकते We हैं, have a pressure काम ही also कर that लेते I हैं. should हाँ, do something. हाँ, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं. Okay, let's work. So this is something probably people are feeling that they are becoming workaholic also. यही है, मतलब एक्चुअली क्या है कि पूरा दिन हम घर में रहते हैं और नाइट में 12 बजे तक 1 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में सुबह फिर उठ के फिर वो काम पे बैठ जाते हैं। तो एक वो माइंडसेट जो है ना, वो एक ऑफिस का रहता है कि यार आप इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो चीज़ जो है वो नहीं होती घर पे। वो भी एक तरह से मतलब एक मेंटली डिस्टर्ब करती है चीज़ वो। और सबसे बड़ी चीज और ये भी लगती है कि हेडफोन इट्स ए बॉडी पार्ट। वी आर कभी कभार तो भूल ही जाते हैं कि यार कॉल खत्म हो गई, हेडफोन निकालना है। एक्चुअली क्या ऑफिस में आप एक दूसरे के पास जाके भी सीट से उठ के कुछ काम है तो मिल लिए, 2 मिनट बात हो गई, उस प्रोजेक्ट की चर्चा हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बात करनी है या कुछ करनी है तो स्काइप चैट करें या फिर कॉल करें। तो more than people's is better to make a call to quick understanding. And same in that कि इसी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती थी ऑफिस में। बट Amit ji, please show your video. Sorry ma'am, I can't because I don't have webcam. Okay, so are you logging in through your laptop? Yeah, from PC, Okay. Mac. जी Yep. जी जी ठीक है, बताइए। So ऑफिस के दौरान फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, लाइक फिजिकल इंटरेक्शन, लाइक अपन बाहर घूमने जाते हैं 5 बजे से, मतलब टी आवर्स हो गए, लंच ब्रेक हो गए, तो उसके साथ साथ मूड रिफ्रेश भी रहता है। बट इन वर्क फ्रॉम होम वी ऑलवेज सिट ऑन द सीट एंड जस्ट कॉलिंग एंड डू आवर स्टेप्स, सो दैट्स इट। सर, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे या सोशल डिस्टेंसेस की बात हो रही है? तो क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तानियों को जानती हूँ तो हमें ना पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, ना खाने की प्रॉब्लम हो रही है, ना इमोशनल और मेंटल हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम इतने जुड़े हुए हैं हमारे कल्चर में कि एक दूसरे को हम महसूस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे कि हम आसपास है या इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कब मिलेंगे। This is our culture. We are more into social interactions. This is what I feel is missing in this time most. अब आप बताएं, क्या मैं पॉइंट की बात रख रही हूँ या कुछ और है? सही है आपकी बात। हाँ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो आप छत पे जाके भी कर सकते हैं। हाँ, बट एक्चुअली क्या है, वो काम के साथ, ऑफिस के अंदर क्या है, काम के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी रहती है। लाइक मुझे किसी से कुछ काम करवाना है तो मैं इंस्टेड ऑफ कि स्काइप कॉल या फिर टेक्सटिंग, मैं सीधा उसके पास सीट पे चल जाता हूँ। और एब्सोल्युटली वही पॉइंट है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस, इमोशनल टच नहीं मिल रहा है, बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। हाँ, है ना? ठीक है जी। I want to add something. Yes, Manoj ji. Yeah, the day before yesterday, I end up my work in the morning 4 o'clock. From How 10 did a.m. that make you feel? Yeah, it's a great. Actually, what happened nowadays, clients come with a concern that nowadays we are having very low business, and whatever we have, whatever clients we are grabbing, we have to done that work. Whatever they ask, this is a pressure on us. And in a normal days, what we are delivering in 7 or 15 days, they are asking, we have very low time, and if we don't manage this, then client will go somewhere else and we will lose our business, and we have to do something, and we have to make the timeline, and we have to grab that client. And this is the pressure on nowadays in some projects. And I just want to say that if you have any thoughts on this, how to say this up situation we can deal with. ठीक है। Any other queries? Yeah, one more thing I would like to add here. Yeah. So actually, ma'am,
मतलब काम को लेके आई थिंक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन लेवल के कारण ये सब हो रहा है, जैसे टाइमिंग्स का जो होता है ना कि एक तो काम कर रहे हैं, एक थोड़ा बहुत जो कलीग को पूछना है या कुछ डिस्कस करना है अबाउट द प्रोजेक्ट और ऑल द थिंग्स। सो इन ऑफिस में तो क्या होता था कि नॉर्मली यहाँ बैठे बैठे बात हो गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे वेट करना होता है उसका कि पहले पूछो, हाय आर यू देयर, आर यू फ्री फॉर 5 मिनट्स, कैन वी हैव इट लाइक चैट ऑन दिस वगैरह वगैरह। तो उन सब चीजों के लिए टाइम लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है। हाँ, किसी को ज्यादा लग रहा हो, किसी को कम लग रहा होगा। अब मेरे जो माइंड में कंसर्न है एक्चुअली, वो मेरा कंसर्न तो ये है कि पैनिक होने का रीजन ये है कि ये कोरोना का होना क्या है। मतलब अभी तक कोई वैक्सीन का पता नहीं है। जब भी न्यूज देखते हैं तो न्यूज में ये होता है कि भाई वैक्सीन के अंदर साल भर लग जाते हैं। फिर सेकंड थॉट आती है कि भाई अगर मोदी जी मान लो कल को लॉकडाउन खोलते भी हैं तो ये जो 1.5 महीने हम मतलब वर्क फ्रॉम होम किया है उसका क्या सेंस है। और मतलब ओवरऑल किस तरह की लाइफ होगी, क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे, मतलब तक ये सब कुछ रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि चलो ठीक है, आज जॉब्स भी हैं और आपने जैसे कहा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी नहीं है अभी तक तो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा ही। तो जो पैनिक करता है ना माइंड को, वो ये करता है कि हम मतलब किस ओर जा रहे हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। मतलब अगर कल को गवर्नमेंट ने ये बोल भी दिया कि ठीक है जुलाई से हम स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब कैसे हम मतलब मेंटली और रेडी होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें कि ठीक है बेबी आप जा सकते हो स्कूल। तो इन सब चीजों को यूं सोच क्यों लग रहा है कि यार मतलब अगर आपने जो ये बताया ना सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे तो मतलब जो मैं 2 दिन के अंदर 1 दिन बाहर जाता हूँ अल्टरनेट डेज पे मतलब दूध वगैरह लाने, तो यूं लगता है कि जैसे मैं बस जंग के लिए जा रहा हूँ और मेरे को कैसे भी बस निकल के आना है उस जंग से, कहीं से भी मेरे को गोली वगैरह कुछ ना लग जाए, बस एकदम सेफ निकल के आना है। मतलब इस तरह की हो रही है, बिल्कुल बालकनी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं होती कि नहीं यार पता चला कि अपन 1.5 महीने से बैठे हैं और एक छोटी सी गलती के कारण कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि। और सबसे बड़ी बात ये है, डर ये भी रहता है कि कल को अगर तुम इफेक्ट हो गए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम परेशान हो, पता चला तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ऐसे देख रहा है जैसे पाकिस्तानी पास में आके बैठ गया। तो उन सब चीजों को देख क्यों डर लगता है कि यार इससे दूर तो रहे ही रहे, पर एक्चुअल में होना क्या है, क्या फ्यूचर है इसका। क्या ऐसे ही हम लड़ते मतलब इसी सिचुएशन में चलते रहें, क्योंकि चाइना में अभी सुना था कि हाँ सब कुछ कंट्रोल हो गया, अब वापस से सुन रहे हैं कि जो जिनको सही हो गया था वो भी वापस से पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है पंकज जी, मैं तो समझ ये गई हूँ सब आपका पॉइंट। जी जी, और कोई सिचुएशन, किसी और को कुछ पूछना है? स्वाति जी। One more thing I'm facing, that is overthinking. Yeah, because that is the main concern. Like we are having the workload from the office, we are also facing the work from the home. So that's why we are having like personally I'm facing this issue. I'm doing so much overthinking nowadays. So how to overcome that? परफेक्ट। इसके अलावा और कुछ? एक पॉइंट ये है मेरे ओर से कि अपन कितना भी काम करें, वर्क फ्रॉम होम है तो सामने वाले के दिमाग में ऐसा रहता है कि यार ये तो घर पे बैठा हुआ काम कर रहा है, क्या पता कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है, चाहे आप उन्होंने डेली से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दिया होगा अपना आउटपुट, बट उसको ऐसा लगता है कि तो सो रहा होगा, ओवर थिंकिंग की बात हो रही है। और ओवर थिंकिंग, राइट? मैं एक चीज मैम कहना चाहूंगा, मैं जो चीज फेस करता हूँ वो ये है मैम कि मैंने देखा है मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, शायद मुझे ऐसा फील होता है कई बार कि जो लोग ऑफिस में 7:30 के बाद 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करते थे, वो आज 9 बजे तक विदाउट एनी कंप्लेंट वर्क कर रहे हैं। तो उसकी वजह मुझे लगती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, शायद इस वजह से कि वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, वो अपने काम को अननेसेसरी ड्रैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एकदम सीरियसली ले रहे हैं अपने वर्किंग आवर्स को। उसकी वजह से वो खुद तो डिले होते ही हैं, वो अपने कलीग्स को भी डिले कर रहे हैं उस वजह से, शायद ऐसा भी कुछ लगता है मुझे, मैंने फील किया है। तो उसके लिए हम उन्हें कैसे मतलब बता सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने उनको बोला है कि भाई आपको अपने वर्किंग आवर्स का भी ध्यान रखना है, पर्सनल लाइफ भी एक चीज है, काम अपनी जगह है बिल्कुल सही बात है, पर आपको अपना आउटपुट भी देना है, उनकी आवर्स में देना है। अब आप अननेसेसरी आप 10 बजे तक बैठे हुए हो तो साथ वाले को भी अननेसेसरी आपने रखा हुआ है, वो भी सही नहीं है।
तो कुछ लोग बीच में कई बार ब्रेक्स लेते थे, फिर मैंने उनके ब्रेक्स कम किए। तो ऐसी कई बार सिचुएशन होती, तो वो लोग ऐसा करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है बॉस, एनी अदर क्वेश्चन? जो साइकोलॉजिकल मोर हो, दीज आर ऑल लाइक यू नो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो शायद आप लोग से बेहतर कोई ये मैनेज नहीं कर पाएगा। मैं एक्सपर्ट हूँ साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज के लिए। I would like to add something. Yes, जैसा गिरिराज ने कहा कि कॉल्स हमारी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई हैं, तो इट्स लाइक अराउंड 12 hours or more than that we are on calls. तो उसकी वजह से कई बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे को कोई भी बाहर जाने का वो नहीं है। पहले हम लोग बाहर जाते थे तो हम लोग फ्रेश फील करते थे। सिटिंग एट होम एवरीबडी इज लाइक दे आर इन सम जेल और समथिंग, एवरीबडी। एंड ऑल्सो जब भी आप न्यूज ट्यून इन कर लो, आपके पास एंटरटेनमेंट के मतलब उस टाइप के मीडियम्स नहीं है। ठीक है, फोन पे आपके पास कुछ एप्स हैं जिन पे आप चीजें देख सकते हो, बट आपका कहीं ना कहीं, जैसा सब लोगों ने कहा कि डर है, तो लोग बार बार चाहते हैं, वो काउंट देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, इंडिया कहाँ जा रहा है, और वो देख के फिर से उस डर में आ जाता है। और वो 10-12 घंटे की जो कॉल्स है, तो वो मेंटल प्रेशर और ऐड कर रही है। मतलब इज दैट समथिंग कि भाई हम कॉल्स को हम ब्रेक करें कि आधे घंटे की कॉल, फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लें, क्या उसको भी बैलेंस करना जो है 12-15 वीडियो, दैट इज आल्सो एडिंग सम प्रेशर और समथिंग। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है जब मैं उठता हूँ रात को 9-10 बजे सीट से, तो ऐसा कभी ऑफिस में नहीं फील होता, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे। ठीक है सर, ठीक। The general energy of the group that I'm facing here or sensing here is, Mukesh, I'm putting you on mute. The general energy that I'm reading either is the confusion ka energy, the conflict ka energy, the third eye of the entire group seems to be off. पता नहीं है क्या है, विजन नहीं पता है, फ्यूचर नहीं पता है। उस वजह से इतना प्रेशर आ रहा है कि आप जो काम नॉर्मली कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, उस प्रेशर की वजह से आप नहीं कर पा रहे समवेयर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस, और फिर धीरे धीरे आई विल एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। इज दैट ओके? कुछ यहाँ पे स्माइलीज हैं, अगर आप नीचे देखेंगे रिएक्शंस लिखा है, वहां पे एक क्लैप का साइन है और एक थम्स अप का साइन है। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक बार क्लैप कर दीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो, या कुछ समझ आ गया जब मैं पूछूंगी ओके तो थम्स अप वुड बी फाइन विद मी। कुछ पूछना हो तो यहाँ पर मैनेज पार्टिसिपेंट्स या पार्टिसिपेंट्स करके एक ऑप्शन है, वहां पे हैंड रेज का एक बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। वंस आई फिनिश व्हाट आई हैव टू टेल यू, आई विल एड्रेस one on one queries. Is that okay? Perfect. So let's begin. कुछ चीजें समझनी होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, ताकि क्योंकि आप सीनियर लेवल पोजीशंस पे हैं तो आपको खुद को बैलेंस पहले अपने आप को करना पड़ेगा। तो विच स्क्रीन कैन यू शेयर? आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ESCC हॉस्पिटल। ESCC डॉट स्क्वायर बिल्डिंग। ESCC हॉस्पिटल। ESCC हॉस्पिटल। वन सेकेंड, फिर मेरे को स्लाइड को बंद करना पड़ेगा पहले यहाँ से। इट्स अ PPT। या PPT मैंने खोला था, बस स्लाइड वो सम अदर स्लाइड जो कई बार कुछ और पिक कर लेता है। एक स्लाइड पीछे चले गए मतलब यहाँ से। I first have to open this. Now, can you see the main title of the presentation today? Yes. Yes. Perfect. Perfect. Yes. So now you need to first understand how we create our own realities. ठीक है? कैसे create करते हैं? सबसे पहली चीज ये होती है कि thought. अगर mind की हम बात करते हैं, you know, mind science पे work करती हूँ, mind therapist हूँ, तो शुरू करूँगी वहीं से. ठीक है? अगर body का basic unit is your biology, यानी कि cell, तो सेल किससे बना होता है? सेल इज मेड अप ऑफ, साइंस सबने पढ़ी है 10th क्लास में। 2 मिनट के लिए फोकस अपने काम से हटा के इस पे डाल देते हैं ताकि ये चीज आज समझ में आ जाए, नहीं तो जहां पहुंचना चाह रहे हैं शायद आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे।
सेल किससे बना होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी। परफेक्ट। आरबीसी डब्ल्यूबीसी किससे बना होता है? इतनी साइंस नहीं पढ़ी मैम। मॉलिक्यूल्स, बस मॉलिक्यूल्स, राइट। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एब्सोल्युटली, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अगर सब चीजों को काट छाट दोगे, मेरी बॉडी को सब एक एक तारों में भी बांट दोगे, तो सिर्फ यही निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाउ चेतन इज हियर। अरे मेरा पूरा स्क्रीन गड़बड़ कर दिया इसने। ओके, सो यही निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, राइट। अब अगर मैं थॉट की बात करती हूँ या मैं पूरा यूनिवर्स की बात कर लेती हूँ, यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। इफ यू गो बैक टू द बिग बैंग थियोरी, बिग बैंग थियोरी में क्या हुआ था? एक एक्सप्लोजन जहां से पूरा यूनिवर्स निकल आया। सो बिग बैंग इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। और ये एक टाइम का फिनोमेना नहीं है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, राइट। तो अगर मैं यूनिवर्स में देख रही हूँ बिग बैंग, तो रेड हॉट एक कुछ ज्वालामुखी जैसा सा कुछ जगह हुआ था जब बिग बैंग हुआ। वहां से जब वो कूल डाउन हुआ, कुछ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन ईयर्स के बाद में, लाइट ईयर्स के बाद में, एक चार्ज आया, माइनस प्लस। वो क्या होता था? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। कुछ जिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स बाद में एक एटम बना। एटम से गैलेक्सीज आए सारे, और गैलेक्सीज से, बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी आया जिसका आकाश गंगा नाम हमने रखा है। हमने रखा है, वहां से नहीं आया, बराबर। आकाश गंगा गैलेक्सी के बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, उनमें से एक सोलर सिस्टम में हम बैठे हैं जिसका सेंटर है सन। उसकी भी बहुत सारी प्लैनेट्स में से थर्ड प्लैनेट अर्थ में हम बैठे। अर्थ में से, इतने कॉन्टिनेंट्स में से, इतने पूरा वर्ल्ड में से एक कंट्री इंडिया, और इंडिया की एक सिटी जयपुर में आप लोग बैठे हैं, और मैं अपने होम टाउन में हूँ आज, अजमेर में। छोटे से कमरे में बैठ के मैं आप सबको ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। कुछ बातें अगर हम वापस से बेसिक्स पे जाएं अपनी क्लासेस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसको पढ़ लें, समझ लें, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी एग्जिस्टेंस आज से नहीं है। बिग बैंग कब हुआ? पर अगर मैं इस पूरे कमरे में लाइट ऑफ कर देती हूँ और अंधेरा है, डार्कनेस है, और आप पहली बार अगर मेरे घर आ रहे हैं, क्या आपको पता होगा मेरे कमरे में बॉटल कहाँ रखी है? वो तभी पता होगा जब लाइट ऑन करी जाएगी, और लाइट ऑन करती आपको पता ये बॉटल है। तो बिग बैंग क्या है? कुछ भी नहीं है, वो लाइट का ऑन करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्कनेस थी तो बॉटल नहीं थी मेरे कमरे में, थी। तो वी आर एग्जिस्टिंग इवन बिफोर बिग बैंग, जस्ट दैट वी हैव फॉरगॉटन। क्योंकि अब हमारा कॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाइड हो गया है थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, जजमेंट, मेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस में से। ये जस्ट एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है। स्टार जैसे बनता है वो बिगड़ता भी है, और अर्थ को हम बचाने वाले कोई नहीं है। अर्थ नोज हाउ टू सेव इटसेल्फ, वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। और हम अपने आप को कैसे बचाएंगे इस सिचुएशन में? सिर्फ कोरोना है, और कोरोना एक सिर्फ वायरस है। वायरस से बचने के लिए एक ही तरीका है, और वो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने का एक ही तरीका है, वो है अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग रखना। इफ यू गाइज विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट ये हो गया, वो हो गया, ये वर्क प्रेशर है, या जो भी आपने मुझे चीजें बताई, आई एम श्योर आपकी इम्यूनिटी इज इम्बैलेंस्ड। एंड दिस लेक्चर विद मी टुडे, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ घर बैठ के, आई एम जस्ट टेकिंग क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी क्लासेस, all paid sessions every day and happening beautifully. Taking this session with you guys, मेरा एक ही intention है, चाहे मैं क्लासेस हिप्नोथेरेपी की ले रही हूँ, चाहे मैं मेरे पर्सनल सेशंस ले रही हूँ, चाहे ये सेशन मैं आज ले रही हूँ, या मैं लाइव जा रही हूँ शाम को इंस्टा पे, एक ही इंटेंशन है कि सबकी फ्रीक्वेंसी जिसकी भी इंक्रीज होनी है आज हो जाए, या मुझसे हो जाए, मेरे थ्रू जिसकी होनी हो मेरे पास पहुंच जाए। आई एम ट्रूली ग्लैड कि यहाँ पे 100 लोगों ने हाँ बोला। वो बात अलग है कि अभी हमारे पास शायद 45-50 कुछ आए हैं, which is different, सब नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे।
So you are the chosen ones. First believe in that, right? And then think, अगर हम mind की बात कर रहे हैं, जो सबको मिला है, सबको एक हार्डवेयर मिला है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, जो यहाँ है, एक माइंड मिला है जो सॉफ्टवेयर है. अगर सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो वायरस आएगा ही आएगा हार्डवेयर में. I hope I have made my point clear here. And now understand how to balance the mind. Look at the chart here. The basic unit of human mind is thought. And thought is nothing but a packet of energy. एनर्जी दो टाइप की होती है, ठीक है, बनी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की है, पर सिर्फ दो टाइप की साइंस ने बताई है. एक होती है रुकी हुई एनर्जी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एक होती है मूविंग एनर्जी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, राइट? सो थॉट्स आर एवरीवेयर अराउंड अस. जिस भी थॉट पे, जो पोटेंशियल थॉट है, उस पे मैंने एनर्जी डाली, अपने कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी डाली, वो एनर्जी इन मोशन बन जाएगा. एंड एनर्जी इन मोशन इज नथिंग बट emotion. Emotion, when it comes to your body, it becomes your feelings. वो लोगों को डिस्प्ले बोर्ड पे दिखता है मॉनिटर की तरह, ये फीलिंग है. अब मेरा फीलिंग अगर गड़बड़ वाला है, इरिटेशन वाला है, एंजाइटी वाला है, तो सामने वाला मुझसे कैसे बात करेगा? आपने मुझे अपने इश्यूज बता दिए, अगर मैं उसी टोन में एंशियस होके बात करूंगी, क्या मैं ये प्रॉपरली ले पाऊंगी सिचुएशन? आज क्या ये वर्कशॉप हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट. सो आई हैव टू बैलेंस माई सेल्फ फर्स्ट. हियर इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन. हमें प्रेशर मिल रहा है. भाई आपको कोई प्रेशर दे रहा है, आप ले क्यों रहे हो? वर्कशॉप शुरू करने से पहले प्रेशर मुझे भी मिला है. मैं चूज करती हूँ, मैं नहीं ले रही है प्रेशर. एंड बिलीव मी, अर्थ स्कूल पे सिर्फ आपके पास एक और एक चीज है, वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस. What do you choose? Situation can be anything, but मेरा जो चॉइस है वो मेरे फिर से थॉट्स पे फोकस करवा रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ आपके फ्लो में रहने का, थर्ड आई मेरा कंफ्यूजन का, और मेरे को समझ नहीं आता है मेरे को क्या यहाँ पे बताना है, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बनेगा? इट वॉजंट वर्थ इट. एक्सपीरियंस कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही मैं सोऊंगी या मेरी आंखें बंद होंगी, ये फाइल क्रिटिकल फिल्टर से होती हुई सबकॉन्शियस में आ जाएगी. द सबकॉन्शियस माइंड इज 6000 टाइम्स मोर पावरफुल, एंड henceforth मेरी लाइफ में मैं वही रियलिटी क्रिएट कर रही होंगी. नाउ लेट्स गो बैक. दो टाइप के थॉट्स हो सकते थे जब सोनिका जी ने आपको बोला कि चलो ये ऑर्गेनाइज करते हैं. एक थॉट, कोई फायदा नहीं होगा, इतना प्रेशर ऑलरेडी है, तुम एक प्रेशर और दे रहे हो. एक थॉट, राइट? दूसरा थॉट, वाओ लेट्स डू इट, देयर इज समथिंग वेरी प्रोडक्टिव एंड वी कैन हेल्प आवर टीम्स विद इट. ये दूसरा थॉट है, राइट? तो अगर आपने पहले थॉट पे एनर्जी डाल दी, कुछ नहीं है, बकवास है और प्रेशर है, कैसा इमोशन बनेगा? प्लीज अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिएगा. मुझे पार्टिसिपेटिव अप्रोच ज्यादा पसंद है. कौन खेल रहा है मेरे साथ ये वाला गेम अभी? या ऑब्वियस थोड़ा डिप्रेस ही रहेगा, राइट? डिप्रेस्ड वाला रहेगा. डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड. इमोशन क्या बनेगा? इमोशन क्या होगा व्हेन यू आर डिप्रेस्ड? इमोशन क्या है पीछे? सैड टाइप ही होंगे. सैड इज अगेन स्टेट ऑफ माइंड. इमोशन क्या होती है? एंगर, फियर, शेम, गिल्ट, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीड. कौन सा बनेगा? एंजाइटी. काम वैसे नहीं हो रहा, मैं ये पिक कर लेती हूँ, ठीक है? काम वैसे नहीं हो रहा, ये और हो रहा, यानी कि मोर ऑफ पैनिक दैट यू आर सेइंग शुरू से, करेक्ट? मोर ऑफ एंजाइटी. अब एंजाइटी है, बॉडी पे कैसी दिखेगी? ऐसे रेस्टलेसनेस टाइप, ऐसे हिले हुए जैसे, ठीक है, कि यार ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ और करना था, हम कर कुछ और रहे हैं, करेक्ट? दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू. ऐसे रेस्टलेसनेस जैसी. और जब रेस्टलेसनेस होगी, आप किस मोड में बात करेंगे? हो सकता है आप बात ही ना करें, हो सकता है आप मुझ पे फोकस ना करें, हो सकता है आप रेस्टलेस होके मुझसे बात करें. और जब आप रेस्टलेस हैं या आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली मैं बाकी से बात नहीं करूंगी. मतलब उनसे नहीं बात करूंगी जो मुझसे बात नहीं कर रहे. एंड ऑब्वियस सी बात है, पंकज जी, सोनिका जी, अजय जी, गिरिराज जी, अमित जी, मनोज जी, विकास जी, रोहित जी, मुझे ये सारे नाम पता है.
क्योंकि आपने मुझसे बात करी है। बाकियों के नाम शायद मैं नहीं जानती, शक्ल मैं नहीं जानती, मेरी स्क्रीन पे सिर्फ 1 2 3 6 9 जने कुछ दिख रहे हैं अभी एट दिस मोमेंट। थैंक यू विकास जी फॉर शोइंग योर फेस हियर, राइट? So that's where it is. So I won't be talking to you, and when I'm not talking to you, experience क्या बन रहा है आपका? भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे बोली नहीं, राइट? और मैंने उसको एड्रेस किया नहीं। अब एक्सपीरियंस क्या बन सकता है? कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है? एक्सपीरियंस बन जाएगा कॉन्शियस माइंड में, जैसे ही आप रेस्ट के लिए जाएंगे सब कॉन्शियस में जाएगा, और 6000 टाइम मोर पावरफुल, एंड यू विल बी इन द सेम रियलिटी ऑफ पैनिक अगेन, because you'll be focusing again on those thoughts. दुनिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो अपना रियलिटी बदलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बदलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को बदलना चाहते हैं, जैसे वो इमोशन लेते हैं उसको भी बदलना चाहते हैं, पर थॉट्स बदलना चाहते को ना। सिंपल, कहानी उल्टी है। थॉट्स बदलोगे तो इमोशन बदलेंगी, इमोशन बदलेंगी तो फीलिंग बदलेगी, फीलिंग के बदलते एक्सपीरियंस बदलेगा, एक्सपीरियंस के बदलते ही आपका सबकॉन्शियस का फाइल ओवरराइट होगा या न्यू फाइल्स जाएंगी, और सबकॉन्शियस एज आई सेड 6000 टाइम्स है, और वो रियलिटी आप क्रिएट करेंगे। बिलीव मी यू, ईच डे आप अपनी रियलिटी इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक अनकॉन्शियसली कर रहे थे, अब प्लीज कॉन्शियसली करिए। और अगर बात समझ में आई हो तो शाम को बैठ के रोज ये एक्टिविटी करिए, पेन पेपर उठाइए, देखिए क्या क्या ऐसे हैवी थॉट्स चल रहे हैं। मैं कुछ भी नेगेटिव कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि हर कुछ हमारा परसेप्शन है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं होता है, ये सब हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा परसेप्शन है, हम कैसे जज कर रहे हैं। एनर्जी सिर्फ साइकिल्स पर सेकंड में मूव करती है। अगर वो ऐसे रेस्टलेसनेस की साइकिल्स पर सेकंड में करेगी तो वो हैवी एनर्जी है, वो रेस्टलेसनेस है। अगर वो लाइट फॉर्म में कर रही है वो हैप्पी एनर्जी है, वो हेल्दी एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है। सिंपल। तो अब देखिए कि आप कौन से थॉट पे फोकस कर रहे हैं। अगर पहले वाले पे करोगे तो नहीं बनेगा, पर अगर दूसरे पे किया, वाओ हमें कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा यहाँ से, वी कैन गेट बेनिफिट। अगर इन थॉट्स पे फोकस किया तो कैसी इमोशन आएगी? कौन आंसर देगा? पॉजिटिव। यस स्वाति जी, कैसी इमोशन आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैंने कहा कुछ होता ही नहीं है, इमोशन की बात हो रही है। हैप्पी इमोशन, राइट? अगर हैप्पी इमोशन है वो बॉडी पे कैसी दिखेगी? मुस्कुराओगे, पार्टिसिपेट करोगे। ये देखो सुनीता जी कितनी प्यारी लग रही है, स्वाति मुस्कुराती हुई जवाब दे रही है, सोनिका इज नाउ स्माइलिंग। सी व्हेन दिस इज द एनर्जी क्रिएटेड, अगर आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो तो मैं मेरा 110% दूंगी और मुझे मजा आएगा देने में यार, राइट? और जब 110% मैं दे रही हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ 11 बजे तक की क्लास लूंगी, इट इज 10:44 ऑलरेडी, राइट? आई कैन एक्सटेंड दिस क्लास। मेरी एक दुबई की क्लास है जो वेटिंग है, मैं उसमें नई एंट्री ले रही हूँ, वो 11:30 शुरू होएगी। आई विल वेट फॉर दैट टाइम। मैंने पहले सोचा 11 बजे फिनिश करना है, मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो व्हेन यू आर हैप्पी, आई एम रिस्पॉन्डिंग हैप्पीली टू यू, योर एक्सपीरियंस इज बिकमिंग व्हाट? अ हैप्पी एक्सपीरियंस। जो हमने मांगा वो हमें मिला, करेक्ट? सोएंगे, सबकॉन्शियस में जाएगा। आज के बाद कुछ और हो या ना हो, इतना जरूर होगा कि मेरा नाम जहाँ आ गया ना डॉक्टर कविता भार्गव का, वहां पे एक चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर होगी। इतना तो मैं कर ही दूंगी, मुझे पता है, राइट? सिंपल है। डू यू हैव दिस कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि कोई आपका नाम सुन के सिर्फ मुस्कुराए? आप ये कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। एनएलपी का एक प्री सपोजिशन है, एक जने ने कर दिया तो सब कर सकते हैं। एक मॉडल बनना जरूरी है बस, उसके बाद सबको पता है कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एंड सिंस द सीनियर मैनेजर्स आर हियर, अगर आपने कर लिया तो आपकी टीम करेगी ही करेगी। बिलीव मी, आपके पास पावर ऑफ चेयर है, अथॉरिटी है, डोमिनेंस है, और जिसमें डोमिनेंस होती है लोग उसी को ट्रस्ट करते हैं। Why do you think EHCC ने बोला और सोनिका जी ने 3-4 जगह से सुना मेरा नाम, and she is here now with all the team members here sitting in front with me.
डोमिनेंस है भाई, मेरा डोमिनेंस नॉलेज से आता है, आपका चेयर से आ रहा है, राइट? तो प्लीज पहले खुद के थॉट्स को बैलेंस करिए, देखिए लिस्ट ऑफ हेवी थॉट्स बनाइए और उनको रिप्लेस करिए हेल्दी यानी कि लाइटर थॉट से। कैसे करेंगे? इफ यू आर कैरिंग पेन एंड पेपर देन प्लीज राइट डाउन। कुछ 6 पीस होते हैं, 6 पीस होते हैं जिस पे हमें फोकस करना है। गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट टेक आउट। First is positive. Use positively worded statements like I am happy, healthy and fine. मैं खुश हूँ, right? Negative कहा कि मैं I am no longer sick, वो नहीं वर्क करेगा, ठीक है? तो पॉजिटिव बोलना है। सेकंड, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं बोलना है, फ्यूचर में आई एम डूइंग दिस, नो, आई एम डूइंग इट राइट नाउ, प्रेजेंट ओरिएंटेड, दिस इज हैपनिंग विद मी, आई एम टेकिंग सेशंस हैप्पीली एंड हेल्दीली, all that I desire comes to me easily and effortlessly, my work life is balanced the way I want to be, simple। इतनी सी चीजें हैं, थॉट पे चेंज करना है, थॉट का फोकस, राइट? थर्ड इज प्लॉजिबल या पर्सनल। भाई ऐसे अनएक्सपेक्टेड से गोल मत मारिए। जुलाई अभी हमने नहीं देखा, दुनिया सबका ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है वो, करेक्ट? होगा तब देख लेंगे ना क्या हो जाएगा, ज्यादा तक क्या होगा। मेक श्योर, गवर्नमेंट विल बी मेकिंग श्योर कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक किया है। और इंडियन गवर्नमेंट पहले टाइम से लॉकडाउन करी है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने लेटर लिखा था, वी आर टू एक्टिव। और इंडिया का कहानी नहीं है ये चाइना और यूएस का कहानी है, हमें बहुत पहले रोक लिया गया है। वी डोंट इवन नो दैट वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड। पर अच्छी बात है, वी आर इन अ गुड कंडीशन, एटलीस्ट यहाँ बॉम्ब के गोले नहीं पड़ रहे, उसका डर नहीं है। हमें तो घर ही रहना है ना। अगर हम पिछले वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की फोटोग्राफ्स देखेंगे तो वॉर जोन के लोगों को जो बंद करके रखते थे, इतनी वाहियात कंडीशन थी। आई विल शेयर द वीडियो विद सोनिका जी इफ यू वांट, शी विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। इतनी बेकार कंडीशन थी। विक्टर फ्रैंकलिन जो साइकोलॉजिस्ट है फेमस, ही वाज देयर, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट, इन दैट सिचुएशन ही वाज एग्जिस्टिंग। उन्होंने कैसे एग्जिस्ट किया? उनकी फैमिली चले गई धीरे धीरे, उन्होंने कैसे एग्जिस्ट किया? उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस, मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढा। प्लीज फिगर आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग योर टारगेट्स, इट्स डीपर देन दैट। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम दैट इज गिवन टू यू बाय गॉड ऑलमाइटी कि घर बैठिए, फैमिली जिसके साथ टाइम आप नहीं दे पा रहे उसके साथ टाइम दीजिए। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि वर्किंग आवर्स हैं, पर एक ये तो है कि इस जोन में उन्हें ये डर नहीं है कि आप शाम को घर लौटेंगे या नहीं, या लौटेंगे तो क्या। वो जो किसने बोला था यहाँ पे कि हम पाकिस्तानी तो नहीं आके बैठ गए नेबरहुड में, वैसे वाला तो डर नहीं है, राइट? यू आर सेफ, वी आर इन अ बेटर कंडीशन। इफ यू लुक एट वर्ल्ड वॉर 2 and 3 के प्रिजनर्स, हमें तो घर ही रहना है और हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या क्या बात है अगर फिजिकली नहीं मिल पा रहे, एटलीस्ट ये तो है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मेरे साथ इतने सारे जने जुड़े हुए हैं। मेरा एक पॉडकास्ट मैंने 2 शेयर करना चाहूंगा मैं। यस सर, गिव मी अ मोमेंट, कैन आई फिनिश ऑफ द 6 पीस? या श्योर। आप हैंड रेस कर दीजिए जैसे स्वाति ने करके रखा है, आई विल जस्ट कम बैक टू यू, है ना? सो दैट इज वेयर दिस इज, राइट? प्लॉजिबली मांगना है, ऐसा नहीं कि मैं जुलाई में जाके बच्चों को स्कूल भेज दूंगा, मत भेजिए। अमेरिका में 1 साल का ऑफ हो गया है, प्रिकॉशंस हम नहीं लेने हैं, एंड इट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके। गेट यूज्ड टू इट। एंड ब्लैक और वाइट ट्रूथ इज दिस, यूनिवर्सल ट्रूथ। एटलीस्ट फॉर गुड 4 years हमें ऐसे जीना सीखना पड़ेगा, एंड इट इज ओके। प्रिकॉशन हमने लेना है और गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, वो एक के पीछे डंडा लेके नहीं भाग सकती, भाग ली है बेचारी, इतना भी कर दिया उसने, अब हमें संभालना है, राइट? हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्लॉजिबिलिटी क्या है कि हाँ ठीक है, आई एम सेंडिंग माई चिल्ड्रन इन जुलाई, अगर खुल जाते हैं, आई एम सेंडिंग माई चिल्ड्रन इन जुलाई एंड दे आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। अगर जुलाई में खुलता है, जो मुझे गारंटी है, मुझे पता है, दिल से पता है नहीं खुलेगा, ठीक है? सो इट्स ओके, ठीक है?
कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रैक्टिस में लाइए, ऐसे हवा में मत रखिए. यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू योर प्रैक्टिस इन लाइफ. लाइक अगर इफ यू आर हैप्पी हेल्दी एंड फाइन, देन यू नो यू फर्स्ट नीड टू बिलीव. यू नो विनी द पूह कहता है, एक छोटा सा कार्टून कैरेक्टर है, in order to believe in magic you first have to believe in magic. So please believe in the magic, then only you can take it ahead. अगर ये मान लिया मैं हैप्पी हेल्दी फाइन हूँ, तो प्लीज वो फील करिए, वैसे ही रहिए. फेक इट टिल यू मेक इट, NLP का प्रिंसिपल है. बिलीव एंड गेट इट. यू सी इट, दिस इज हिप्नोथेरेपी. दो अप्रोचेस हैं, राइट? दोनों को बैलेंस करते हुए चलने का है. ओके, नेक्स्ट इज परसिस्टेंस. रोज रोज जो भी थॉट बनाया है उसको फोकस करिए. 21 डेज में एक न्यूरल पाथवे बनता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर, यानी कि माइंड एंड द ब्रेन. एक भी दिन ये न्यूरल पाथवे गड़बड़ किया तो नेक्स्ट डे से डे 1 शुरू हो जाता है. 21 डेज 1 न्यूरल पाथवे, 40 days 1 habit, 90 days new DNA wiring happens. Clear? Next is precise. छोटा मांगिए, बहुत कुछ मत मांग लीजिए. एक बड़ा अच्छा सा जोक है. एक इंसान बोलता है, या खुदा मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दे दे, बहुत सारी लड़कियां दे दे आसपास, और बहुत सारा पैसा दे दे जेब में. यूनिवर्स कहता है तथास्तु, और उसको बना देता है बस का कंडक्टर. ठीक है? सो प्लीज थोड़ा थोड़ा मांगिए. अच्छा मैं ये स्टेप, 1 step at a time, go slow, right? You don't have to do everything. ये काम हो गया ना. आज पूरे दिन भर में मेरे कितने सारे काम हैं, and in the morning I was thinking, oh आज तो बहुत सारा working day है. No, 1 step at a time. First I will take this, then I will join my Dubai class, evening में live, and then उसके बाद में मेरा खुद का podcast. हो गया पूरा दिन, और क्या बता है, राइट? पर अगर हमने सब कुछ करने की कोशिश करी तो हम जो आज में हमें आज करना है ना, वो हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज स्ट्रक्चराइज करिए, टाइम टेबल बनाइए, अपना खुद के टारगेट मिनी चंकिंग करिए, छोटे छोटे टारगेट से आगे एक एक स्टेप लीजिए. ठीक है? दैट इज वेयर इट इज. और जब छोटा होगा तब देखिएगा, अच्छा अभी तो मेरे को ये करना था, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब कॉन्शियस माइंड का थिंकिंग रीजनिंग है. ठीक है? एंड लेट्स see mind how it looks like. It's a huge ball of energy. So let me tell you, Dr. John Capel defined mind as a big ball of energy that is approximately 12 feet in diameter, the center of which is located in the pit of your stomach, where exactly you feel the butterflies. And science is a proof that if you cut my stomach into 2 pieces, you will not find a single living butterfly. Mind 12 feet है diameter में, अंदर नहीं है body के अंदर सिर्फ brain है, वो ऐसा दिखता है. और सेंटर कहाँ है? पिट ऑफ द स्टमक में. ठीक है? सो यानी कि सारे थॉट्स आसपास हैं, और मैं जैसा सोचूंगी, माइंड हैज द कैपेसिटी कि वो एनर्जेटिकली वही थॉट सामने वाले में डालेगा. यू बीइंग सीनियर मैनेजर्स, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू थिंकिंग, व्हाट आर यू डिलीवरिंग, वही होगा. ठीक है? आपको टारगेट मिल रहे हैं ना, आप आसानी से ले लीजिए. मुझे तो पता है, मुझे टारगेट मिला है, मुझे कोर्स अभी कराना है एक घंटे का आपके साथ में. आपने प्रेशर दिया, मैंने लिया खोला. ठीक है? थोड़ा सा एटीट्यूड, यू नो, चेंज इन एटीट्यूड. सो विद योर न्यू एटीट्यूड यू कैन फील लाइक, यू नो, सचिन तेंदुलकर हिटिंग द 100th. इट्स ऑल इन द माइंड, बिलीव मी. पता है क्या होता है, हमारा ब्रेन जो ना सिर्फ माइंड के ऊपर ऑपरेट करता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है. अभी तक माइंड हमें उल्लू बना रहा था, अब हम माइंड को उल्लू बनाएंगे. सिंपल सी कहानी है. करेक्ट? हमें पता है ना हमें क्या सोचना है. ओके, या परफेक्ट. अब क्वेश्चंस जो एक विकास जी को शेयर कर रहे थे. हाँ मैम, एक्चुअली में मुझे वैसे पर्सनली इस लॉकडाउन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं बस यही उस टाइम पे आपकी इस बात पे शेयर करना चाह रहा था कि कई बार से मम्मी मुझसे कहती कि क्या कर रहे हो तुम लोग, इससे तो तुम ऑफिस जाते थे तो अच्छा था, टाइम से मतलब 8:30-9 बजे तक आते थे, यहाँ तो तुम्हारा कोई टाइम ही नहीं है, 10 बज रही है. तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई अभी काम होता है, कई बार तो फिर करना पड़ता है, रुकना पड़ता है. मैंने कहा अभी इससे अच्छा क्या होगा बेटर, मैंने कहा अभी मैं अभी पुलिस में होता या अभी डॉक्टर होता तो मैंने कहा फिर बाहर जाना पड़ता. तो वो भी तो एक सिचुएशन है, उसको भी तो समझो. अगर ऐसी फैमिली होती तो मैंने कहा उस टाइम कितना प्रेशर होता. मैंने कहा यहाँ तो इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही हो मेरे लिए,
मैंने कहा अभी बाहर जा रहा था तो कितनी, मैंने कहा उन माओ का क्या हो रहा होगा जिनके साथ में इनकी फैमिली में ऐसे लोग हैं। मैंने कहा आपको माओ उसको का, भी ध्यान रखना बीवियों चाहिए। का, बीवियों का। आई हैव अ स्टूडेंट इन जोधपुर जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके जो हस्बैंड है वो वहाँ के बिल्कुल CMHO हैं। उन्हें तो, वो तो गवर्नमेंट में हैं, वो बेचारे 15-15 दिन 20-20 दिन घर नहीं आ रहे, बच्चों की जिद पे 15 मिनट के लिए घर गए, हाँ तो और इसीलिए मैं उसमें भी उनसे यही सबको कहता हूँ दूर कि से मिले। इसलिए मैं उनसे कहता यही कहता हूँ कि भाई आपको इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। भाई मैं घर पे हूँ, आपके सामने हूँ, इन फ्रंट ऑफ यू, तो उनका इट्स ओके। विकास जी ये बोलिए, अब पैनिक नहीं होना चाहिए, मम्मी का भी कॉन्शियस माइंड नहीं समझेगा। पहले तो यहाँ सिचुएशन में ये समझना है कि आपका ब्रेन है तो एक ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो वो आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने समझाई, पॉजिटिवली वर्डेड, राइट? पैनिक नहीं होना चाहिए, मम्मी का माइंड नहीं समझेगा, बोले रिलैक्स रहो। एब्सोल्युटली। मम्मी सी रिलैक्स, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम अलाइव, सिंपल, सही, ठीक है? वो वाले वर्ड्स यूज करिए। अभी मैंने 6 P बताए हैं, ठीक है? हो सकता है ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आई विल शेयर, सोनिका के साथ में कर दूंगी, एंड प्रोबेबली यू कैन टेक इट अहेड, ठीक है? ऑलराइट। तो वो वाली चीज हो सकती है, 6 P, सिंपल। और ये अपनी सिर्फ एफर्मेशंस नहीं बनानी, थॉट्स पे नहीं फोकस करना, आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर डालिए आज से। मैं तो मेरे मैडम कर एक रहा हूँ एक शब्द लिटरली। को अगर आप सुन रहे होंगे ना, वो इन 6 P पे बहुत मास्टरी लगी है, ठीक है? और ये कॉन्शियस जो विल पावर है ना, कॉन्शियस माइंड का फसेट है, वो वैसे ही होगा। चाहे मैं कितना ही बोल दूं सबकॉन्शियस इज ह्यूज वाइड, पर विल पावर विल ऑलवेज रिमेन द फसेट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। विल पावर है तो सब है, राइट? और विल पावर है तो इम्यूनिटी भी है। यस स्वाति। या मैम, लाइक समटाइम हैपेंस कि हमें पता होता है कि दिस इज नेगेटिव थॉट एंड वी शुडंट थिंक अबाउट इट, बट स्टिल अगेन वी कांट जजमेंट से कंट्रोल। निकलना है, नेगेटिव पॉजिटिव के पहले तो। या स्टिल वी कांट कंट्रोल दैट, तो वो मैं कैसे उसके लिए पॉसिबल? टेक्निक बताती हूँ, ठीक है? आई हैव नोटेड दिस। एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? ठीक है, तो अभी मैडम क्या समझ, यस ज्यादा पॉजिटिव रहना भी नुकसानदायक होता है? सर, एक होता है डिप्रेशन, एक होता है मेनिया। सो सोनिका जी प्लीज शेयर माय पॉडकास्ट का लिंक, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है इस वाले से। तो उसमें मैंने मेंटल हेल्थ का लाइन बताया है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो बीच में है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मेनिया में नहीं पहुंचना है, ना डिप्रेशन में पहुंचना है हम, क्योंकि बैलेंस पॉपुलेशन है, नॉर्मल कैटेगरी, इट हैज टू बी योर बैलेंस बीच में, ठीक है? ओके, अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो आपका अच्छे पॉजिटिव थॉट्स हो, तो आप बहुत ही ज्यादा वो हो जाएंगे, मेनियाक ही बन जाएंगे, वो भी नहीं बनना है। पर होप नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो विक्टर फ्रैंकलिन ही ओनली सेड आई हैड होप। मुझे नहीं पता था कब मैं वहां से निकलूंगा, but there was only one thing which was alive, and that was hope. He lost his family and everybody, but hope existed. That is existential psychology. ठीक है? Okay. So conscious mind छोटू सा है, 10 to 12%। थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, जो ओवर थिंकिंग की बात यहाँ से हो रही थी, वो इतना सा माइंड करता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन अपनी पूरी जिंदगी इतने से माइंड पे निकाल देती है, और एंड में सोचती है आई वाज सो इंटेलिजेंट। अब मैं ये कहूँ, आपने अपने 90% का तो यूज ही नहीं किया, बहुत बुरा हो जाएगा उन लोगों के साथ में। और क्योंकि अब आप मेरे को सुन चुके हैं, तो आज के बाद से आप भी प्लीज 90% का यूज कर लीजिए, ठीक है? तो कुछ छोटी छोटी टिप्स जो मैंने बताई है, थॉट्स पे एनर्जी चेंज करना, और फिर जो पॉजिटिवली डालेंगे, सोने से 1.5 मिनट पहले जो आप डालेंगे अपने माइंड में, वही नीचे जाएगा। अब अगर वो पैनिक थॉट है तो पैनिक इंक्रीज होगा 6000 टाइम्स। अगर वो हैप्पी, हेल्दी, काम, कूल, कंपोज थॉट है, तो काम ही जिंदगी में आएगा, तो पैनिक नहीं आएगा, ठीक है? जो लास्ट मिनट, यू नो, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? सी, मेरा माइंड 12 फीट डायमीटर बाकी का माइंड से ओवरलैप कर रहा है। अभी मैं यहाँ बैठी तो इतने सारे जने, जितने 60 पीपल आर हियर, सबके माइंड से ओवरलैप हो रहा है, राइट? और जब हम रात को सोएंगे, सोचिए 1.5 मिनट पहले अगर मैंने कुछ सोच के सो गई, मुझे ये चाहिए, तो जब हम रात को सोते हैं तो ये जो बीच की लाइन है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच की, इसको क्रिटिकल फिल्टर कहते हैं, जो इनहिबिटरी प्रोसेसेस है, ये ब्रेक हो जाता है। तो कॉन्शियस माइंड अपना कंट्रोल नहीं लगाता, तो बाकी सबकी एनर्जी मिलके आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपको पहुंचना। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सीक्रेट के पीछे का साइंस।
और जब एक जना कर सकता है तो सब कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज सोने से पहले, इसलिए कहते हैं कि अच्छी चीजें सोच के सोइए, लड़ाई हो तो मत सोइए, सुबह उठे तो कुछ अच्छा सोच लें, क्योंकि दैट इज द टाइम वेयर योर सबकॉन्शियस इज मोस्ट एक्टिव। क्रिटिकल फिल्टर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, धीरे धीरे हम उठते तो और स्ट्रॉन्गर होता जाता है, तो आपका फिल्टर ब्रेक हो रखा होता है थोड़ा सा, ठीक है। और यही क्रिटिकल फिल्टर है जो जजमेंट की लेयर है, हम इससे जज करते पूरा दुनिया को, ये राइट है, ये रॉन्ग है। अभी मैंने अपने क्रिटिकल फिल्टर से रूल लगा लिया, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, विच मीन्स दिस इज माई रूल टू लाइफ, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। when now I have a rule to life and my reality, जो एक्सपीरियंस हो रहा है दूसरों से, सपोज मैंने एक दिन रूल बना लिया कि मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे मेरे लिए एप्पल लाएंगे, और मैंने सोनिका जी को भी ये बात चेतन के थ्रू रखवा दी कि सोनिका जी मुझे तो एप्पल पसंद है, तो सबको बोल दीजिए एप्पल लेके आए, राइट। एनर्जी एक्सचेंज एप्पल, सबको पता था, सब एप्पल लाए मेरे लिए। जब मेरा रूल मेरी रियलिटी से मैच खा रहा है तो आई एम एट ईज, कंफर्ट में हूँ, करेक्ट। पर एक दिन क्या होता है, सुनीता कहती है मैंने मैम से ना बहुत कुछ सीखा है, मुझे इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार आ रहा है, तो मैं इन्हें एक बनाना खिलाऊंगी, या जिन्होंने बहुत एप्पल खा लिया, राइट। तो सुनीता लाती है बनाना, रूल किसका था, एप्पल का। एप्पल बनाना नॉट इन सिंक, रूल नॉट इन सिंक विद द रियलिटी, नाउ आई एम एट डिस ईज, this is in my mind, this discomfort is in my mind, and it takes 8 to 9 months, maximum 2 years, ये जो dis-ease in the mind हुआ है बॉडी पे आने के लिए इतना सा टाइम है, ठीक है। और अगर मैंने रूल मॉडिफाई कर दिया, नो माइंड सेंसेस का एक ही रूल है, सारे रूल तोड़ दो पर नए बना लो, क्योंकि रूल नहीं बनाओगे तो लाइफ ट्रैफिक लाइट की तरह हो जाएगी, जहाँ पे ये 3 लाइट्स नहीं होती है तो जैम हो जाएगा, तो मॉडिफाई कर दो। सपोज मैंने रूल बना लिया अब कि ऑल माय पार्टिसिपेंट्स विल नाउ ब्रिंग एन एप्पल और अ बनाना टू मी, नाउ आई एम एट ईज अगेन, दिस विल नॉट बिकम डिस-ईज टू मी and I will not fall ill because my immunity will be strong. कैसे होता है नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये समझ आया डिस-ईज टू डिस-ईज कैसे जा रहा है, रूल बनाया लाइफ का, वो सिस्टम बना दिया कि ऐसे ही होना चाहिए, मेरे को इतने घंटे ही काम करने का है, राइट। उससे ज्यादा हो गया तो अब डिसीज हो रहा है, अब मोर इनहिबिशन होंगे, आप रोकोगे और अपने सारे ये थिंकिंग रीजनिंग वो शुरू होता जाएगा कॉन्शियस माइंड का, उसका जो बैट बॉल गेम होता है, राइट। उसके बाद इनहिबिशन हुआ, अंदर इंटरनलाइज करोगे, इंटरनलाइज कहाँ होता है, इधर कपड़ों में नहीं होता है, वो बॉडी में होता है, राइट। और बॉडी पे आते ही दिस बिकम्स डिजीज, एंड डिजीजेस ब्रेक डाउन लेकर आते हैं, ब्रेक डाउन लाइक छोटे से स्ट्रेस से शुरू होता है, एंजाइटी से शुरू होता है, धीरे धीरे फियर, फोबिया, मेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर, राइट, कन्वर्जन हिस्टीरिया, धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया। नाउ स्किज़ोफ्रेनिया इज द एंड ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। मेंटल हेल्थ का लाइन जो पॉडकास्ट की मैं बात कर रही हूँ उसमें यही है, तो लाइन के किस तरफ तक आपको अपने आप बैलेंस करना है। जनरल पॉपुलेशन है, हम संभाल सकते हैं अभी, राइट। उसके बियॉन्ड अगर 60% की लाइन क्रॉस कर ली है तो न्यूरोटिक कैटेगरी है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, बंदे को फिर भी इंफॉर्मेशन है कि हाँ सभी सही है पर मैं कुछ गड़बड़ में हूँ, उस टाइम पे आपको साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स की जरूरत लगती है, हिप्नोथेरेपिस्ट की जरूरत लगती है, हीलर्स भी कुछ हद तक कर देते हैं। अगर 60 बियॉन्ड क्रॉस कर लिया या 65 बियॉन्ड, 70 बियॉन्ड क्रॉस कर लिया, अगर हम इसको इमेजरी परसेंटेज दे दें तो उसके बाद बॉडी पे आ गया सब कुछ, नाउ यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, नाउ यू नीड द मेडिकेशन, और वो भी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको डायग्नोज करेगा पहले, तो मेडिसिन लीजिएगा प्लीज। ऐसे नहीं है कि दवाई प्रॉब्लम हो रही है सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए, कई बार बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाता है। गेट योरसेल्फ अलाइंड विद द राइट पर्सन, ठीक है। अंडरस्टैंड, अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो डिस-ईज इन द माइंड जो मैं अभी रीड कर रही हूँ इतना सारा, वो सब डिस-ईज है और माइंड में ही है, बॉडी पे ना आए। नहीं आएगा कैसे, जब आप अपने रूल्स को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर ये समझ लिया कि घर बैठे हैं तो क्या हुआ, फैमिली के साथ है, सेफ है, और जैसे कि बोला कि टाइम बच रहा है ट्रैवलिंग का, कम्यूटेशन का, तैयार होने का,
कई बार को तो 90s में भी पढ़ा सकते हो, काम कर सकते हो, ऊपर दुपट्टा डाला काम हो गया, शेव नहीं किया तो नहीं किया, हाउ डज इट इवन मैटर, राइट? और धीरे धीरे इस तरह से बॉडी पे आता है क्राइंग सिंड्रोम, ठीक है, रोए नहीं है, स्टोर्ड टीयर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पीठ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब बीमारियां होगा। देन इज द नेक्स्ट सिंड्रोम, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट सिंड्रोम, इट कम्स टू द ग्रोइन। जितने हमारे को किडनी की स्टोन्स वगैरह आएंगे वो सब गिल्ट इश्यूज, गिल्ट आर स्टोर्ड इन किडनी स्टोन्स, इट्स देयर, ओके। लास्ट फाइट सिंड्रोम, सॉरी सेकंड लास्ट, फाइट पूरे बाजुओं में आएगा, गोल्स जो रीच नहीं कर पा रहे वो डाल दिए, या सिचुएशन जिनमें आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सिचुएशन है तो आप लड़ने की कोशिश जरूर करें, तो हाथ ऐसे मोटे हो जाएंगे एंड ऑल, फिंगर्स में गड़बड़ हो जाएगा, आर्थराइटिस वगैरह आ सकता है, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, एल्बो हो जाएगा, टेनिस एल्बो, ऑल दीज आर फाइट सिंड्रोम्स। देन इज द फ्लाइट सिंड्रोम, भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो, राइट? अगर आपका कोई बेस्ट इनिशिएटिव लाइफ में नहीं ले पा रहे तो राइट फुट जाएगा, सपोर्ट नहीं है तो लेफ्ट गया, अगर लोगों का ब्रंट अपने ऊपर लेके चल रहे हो तो आपके एंकल्स जाएंगे, अगर ग्रीफ स्टोर्ड है तो काफ मसल जाएगा, चेंज इन लाइफ जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो नीज पे आएगा, अगर इंटीमेसी इश्यूज हैं तो वो आपके थाइस पे आएगा। सो दिस इज वेयर दिस इज सिंपल एक्सरसाइज है, आप अगर नंबर कर सकते हैं, अभी टेक 2 मिनट्स ऑफ, प्लीज रेटिंग कर दीजिए ना अपने लिए, रैंकिंग कर दीजिए अपने बॉडी पार्ट्स को कि कौन सी वाले पार्ट को आप सबसे नंबर 1 देते हैं। लेट्स डू इट, करें ये। सोनिका जी, व्हाट डू यू से? या सो जस्ट टेक आउट द कलर्स एंड रेट योर बॉडी पार्ट्स 1 to 5। सबसे अच्छा जो बॉडी पार्ट लगता है उसको 1 दे दीजिए और जो सबसे खराब लग रहा है उसको 5 दे दीजिए, ठीक है। मीनवाइल पंकज जी, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो इससे पहले पूछने की जरूरत है? इट्स ओके, ठीक है, सो प्लीज रेट इट आउट, लेट्स सी अगर कुछ चल रहा है तो आई राइट अवे, आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। पेन पेपर होगा तो सबसे अच्छी चीज होगी, because your handwriting is the direct contact of conscious mind with your subconscious mind, it connects it directly. Is it something has to do with the colors also? I mean, yeah, just name the color, put the colors और उसके बाद उन colors को 1 2 3 4 5 दे दीजिए, understanding that this is the body part I like most, so most is 1, least is 0, sorry 5. Once you do this, finish doing this, give me a thumbs up. Perfect. I'm giving 2 more minutes so that because मैं बाकियों को देख नहीं पा रही हूँ यहाँ से. Okay, I can shuffle it. ठीक है. From the reactions, please, yeah, that thumbs up thing should be selected. All right. So अब the trick is 5वां नंबर जिस भी कलर को दिया है, that is the syndrome that you are having. And उन सबके लिए ये affirmation है. अपने अपने affirmations लिख लीजिए जिसको जो भी syndrome है. The last 5th option वो आपका syndrome है, अभी presenting है, वहां पे dis-ease in the mind है, हो सकता है body पे आ चुका है,
क्योंकि आई हैवंट इंटरेक्टेड विद एवरी वन ऑफ यू। हो सकता है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, ये एफर्मेशन आप कर लेंगे तो एटलीस्ट वो 5th वाला आपका जो सिंड्रोम है वो डिस ईज से थोड़ा सा ईज में आ जाएगा। एंड यू कैन फाइंड माई यूट्यूब चैनल, उस पर भी मैंने ये एफर्मेशन अच्छे से कैसे करना है, EMT वगैरह वो सब दे रखा है टेक्निक्स। यस पंकज जी, यू वांटेड टू से समथिंग? या मैम, एक्चुअली आपने ये मेंशन किया कि जब भी जैसे मतलब जो एग्जांपल लिया आपने सुनीता मैम के साथ कि मान लो आपको एप्पल मतलब कि वो आपने अपनी तरफ से एप्पल का मतलब इच्छा थी और वो फिर बनाना लेके आए, तो आपने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उन मतलब उस टाइप को रूल्स को अपने माइंड में ऐड कर लो। हाँ, मॉडिफाई कर लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, रिजिडिटी में नहीं चलना है। जब हम रिजिड हो जाते हैं तो डिस ईज हो जाता है, है ना? या तो अब इसके अंदर जो मेरा कंसर्न है, सपोज करो कि आप अपनी जगह हो, सुनीता मैम की जगह मैं हूँ, और मैं भी मतलब काफी हैप्पी हूँ कि चलो ठीक है, मैम ने काफी कोऑपरेट किया, मुझे बहुत अच्छी सिचुएशन में लेके आए। अब मैं कहीं भी कोई मतलब एक वाइन की बोतल लेके आता हूँ जो आप बिल्कुल डिसलाइक करते हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आपको, तो उस केस में भी क्या होगा कि हाँ ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत I will नहीं, accept, तो आपका रूल्स ही नहीं। correct, I will accept, but what I will do is I will make use of it। मुझे उसको कैसे यूज करना है आगे? मैं हो सकता है वो सोनिका को गिफ्ट कर दूं, या मैं स्वाति जी को गिफ्ट कर दूं, या मैं किसी और को दे दूं, पर मैंने एक्सेप्ट किया, राइट? लाइक जो मॉडिफिकेशन है। आपके अकॉर्डिंग चाहे सही हो चाहे गलत हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। नो, सही और गलत हमारी डेफिनेशन है बॉस, ये समझनी है। जैसे मैंने कहा, हमारे जो क्रिटिकल फिल्टर की लेयर होती है, जो कॉन्शियस माइंड है 10 to 12% है, उसके बियॉन्ड सबकॉन्शियस है, इन दोनों के बीच में एक लेयर है क्रिटिकल फिल्टर। ये वो चश्मा है जिससे मैं पूरा दुनिया को देख रही हूँ। अगर मैंने काला चश्मा लगाया तो मुझे दुनिया कैसी दिखेगी? काली। ब्लू लगाया तो ब्लू दिखेगा, रेड लगाया तो रेड दिखेगा, करेक्ट? चश्मा मैंने पहना है, दुनिया वैसी ही है। और मेरे इन्वायरमेंट में सिर्फ मेरी मिररिंग करेंगे लोग, मुझे वो दिखाने आएंगे जो मेरा लेसन है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा लेसन क्या है। दुनिया के ना मतलब हर चीज के 3 एंगल होते हैं। अगर मैं कमौलिका वाला सीरियल लेती हूँ, तो जो कमौलिका का हस्बैंड था वो एक्टर था, उसे नहीं पता था कि कमौलिका बुरी है, करेक्ट? हम ऑडियंस होते थे, ये सेकंड एंगल है। हमें पता होता था क्योंकि हम बोलते थे ये फिर फंसेगा, क्योंकि हमने सीन 1 सीन 2 दोनों देखे होते थे। ये ऑडियंस का रोल है। तीसरा है डायरेक्टर, उसको तो सभी पता था ये होएगा उसके बाद ये होएगा। अब हमारी ही लाइफ है तो हमने ही कहीं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस लिखी है, ठीक है? आज आप एक्टर के रोल में हैं, वो रोल 1 है, एंगल 1 है। दूसरा, थोड़े से डिसोसिएट होके देखिए क्यों चल रहा है, दिस इज सेकेंड एंगल। हमने लिखा ही क्यों, नेक्स्ट हमने क्या सीखा? जिस दिन आपने अपनी लर्निंग देख ली कि इस सिचुएशन में मेरी कहानी ये है, उस कंट्रीब्यूशन को पुल आउट कर लीजिए, एनवायरनमेंट बदल जाएगा। वो जजमेंट सिर्फ हमने ही कहीं डाला है, और एनवायरनमेंट बदलेगा ना, उसको यूनिवर्स हमेशा 2 बार टेस्ट करता है, एकोज भेजेगा। अगर हम जैसे हमारे क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, यूनिवर्स एकोज भेजता है, ठीक है? कहानी रिपीट करेगा एक बार, अगर आपने लेसन लर्न कर लिया, टेस्ट करेगा कितने % मार्क्स आए, राइट? लेसन लर्न कर लिया तो बढ़िया, दूसरा एको भेजेगा फाइनल एग्जाम का। अगर वो भी लर्न कर लिया तो परफेक्ट है, वो एनवायरनमेंट बदलेगा, दूसरा लेसन आपको सीखने को मिलेगा। पर अगर आप दोनों एकोज में एक बार भी हिल गए ना, तो यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको टेस्ट करता रहेगा। प्लीज अपना लेसन ढूंढिए। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम अपना लेसन नहीं देखते, हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं देखते, हम दूसरे को बदलने में लग जाते हैं, उसको ब्लेम करने में लग जाते हैं। यू नो, इट्स हाई टाइम, दिस इज एसेंशियल टाइम। ये क्यों हो रहा है? ये सब मंथन हो रहा है। जिसका फ्रीक्वेंसी लोअर है, जिसका इम्यूनिटी लोअर है, वो जाएगा। जिसका फ्रीक्वेंसी हायर है, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर है, जो हर सिचुएशन में ईज में हो जाता है, अपने आप को बैलेंस कर लेता है, वो हाई इम्यूनिटी का है, वो बचेगा। अब कहानी देखिए, क्या आपने क्रिएट करी, कहाँ से आई, एंड देन पुल बैक योर कंट्रीब्यूशन। थर्ड एंगल से देखना जरूरी है, ठीक है? इतनी सी कहानी है। थैंक यू मैम। आई वांट टू Yes, आस्क Ajay समथिंग। आई एम टोटली एग्री विद यू कि आपने ये कहा कि हमको, ठीक है, जैसे आपने अभी एग्जांपल ये फ्रूट्स वाला ही दिया है, ठीक है,
कि एक बंदे ने आपको अगर बनाना लेके आना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो हमें एक सेट ऑफ रूल आपने सेट किया कि हाँ सब मेरे को एप्पल ही गिफ्ट करेंगे, लेकिन एक बंदे ने उसको ब्रीच किया, ठीक है। अब वो आप तो उस चीज के लिए ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करें, दैट इज नॉट अवर प्रॉब्लम, बट उस चीज को बाकी सब फॉलोअर्स ने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आप जिस 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 आउटकम की आपको एक्सपेक्टेशन थी वो आएगा ही नहीं, इट इज टोटली गोन इन फेलियर। तो यहाँ अब पे नहीं, अब आपका ये देखना है अजय जी, मैं ये समझ पा रही हूँ आपका ये क्वेश्चन आ रहा है आपके स्ट्रक्चरल सिचुएशन से, जिस रोल में आप हैं और आपकी टीम के साथ में, राइट। पर Yes. एक बंदे ने अगर कुछ फॉलो नहीं किया, अब आपको इस सिचुएशन में देखना है कि उसने ये फॉलो क्यों नहीं किया। नो मैम, लेकिन अपन इसमें भी मैं आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसमें भी आपने ठीक है सिचुएशन एनालाइज कर लिया, आपने उसको समझा दिया कि देखो अपन ने ये चीज इसलिए की है ताकि अपने को ये इस आउटकम पे अपन पहुंच सकें, बट वो समझने के लिए रेडी नहीं है और कंटिन्यूअसली ही इज फ्लोटिंग द एज, पता नहीं नेगेटिव एनर्जी सही वर्ड है कि नहीं, लेकिन वो स्प्रेड कर रहा है Heavy उसके energy. सराउंडिंग्स में। तो उस केस में हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? अजय जी, ये सिचुएशन आपको क्या सिखाती है? अगर ये सिचुएशन रियल है, हाइपोथेटिकल नहीं है, व्हाट इज इट एक्चुअली टीचिंग यू इन योर पर्सनल लाइफ? ये सिचुएशन पर्सनल लाइफ में तो यही है मैम, उसको काउंसिल करेंगे 2-3 बार, उसके बाद में एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी फ्रस्ट्रेट होंगे। नहीं, आपको क्या सिखा रही है? मैं उसकी लर्निंग नहीं बोल रही, काउंसलिंग सभी करते हैं और एचआर बैठी है आपके यहाँ पे, वो भी कर सकती है अच्छे से। पर्सनल लाइफ में 1 सेकंड जी, हेलो, वो वही है, मैंने मीटिंग में सुबह भी ऑन किया था, वो इट्स देयर। नहीं, स्केड्यूल में क्यों जाओगे आप? माई मीटिंग्स में जाओ, माई मीटिंग्स में ऑप्शन आएगा स्टार्ट द मीटिंग। हाँ वही है ना, आज अप्रैल 25, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं वर्कशॉप में हूँ, क्या आप सृष्टि की हेल्प ले लोगे अभी? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। सॉरी, मेरा दुबई वाला सिचुएशन शुरू हो चुका है। ओके, सो अजय जी, क्या सिखा रहा है आपको ये? मैम अगर मैं लर्निंग, मेरी पर्सनल लर्निंग की बात करूँ तो मेरे को इन सिचुएशंस को टैकल करना ही सिखा रहा है। मैं उस चीज़ को मतलब सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा कि मैं उसको कैसे काउंसिल करूं जिससे इस तरह की चीज़ें रुकें। करेक्ट, कैसे काउंसिल करूं, या एक पेशेंस सिखा रहा है ये सिचुएशन आपको? पेशेंस बहुत है, इसीलिए तो वो रिपीटेशंस अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी साइड से भी। और अगर बहुत पेशेंस है, अगर बहुत पेशेंस है तो आपको वो स्ट्रिक्टनेस सिखा रहा है, अब वो आपको एक स्टैंड लेना सिखा रहा है। थर्ड एंगल क्या है कहानी का, वो देखने का है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हो सकता है आप असर्टिवली अपनी बात को नहीं रख पा रहे, पता है कम्युनिकेशन एक आर्ट है, कब बोलना है कब नहीं बोलना है और किस तरह से बोलना है। अग्रेसिव नहीं होना है, असर्टिवली बात को रखनी है और ऐसे रखनी है कि वो सामने वाला बात मान जाए। राइट, इतनी सी कहानी है, ठीक है सर? यस मैम, आई विल ट्राई इट। परफेक्ट, देखते हैं क्या आउटकम आता है। ऑसम, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन के लिए आप? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि ओवर थिंकिंग वगैरह होता है, उसको कैसे रोकने का है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई जस्ट शो अ डेमो टू यू, उसके बाद में मैं ये दिखाऊंगी। क्या कोई भी एक इंसान है जिसको अभी फिलहाल कोई भी पेन हो रहा है? एनीवन? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, आई विल कम टू यू। अजय जी, ओके ओके, सो अजय जी विल हैव दिस स्मॉल गेम विद यू, ओके? ठीक है। सो अपना लेफ्ट पाम आप लेंगे और राइट की ये 3 फिंगर पॉइंटिंग, मिडिल और रिंग फिंगर को लेके ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसे ऐसे, इस तरह से, ठीक है? क्या हो रहा है, हेडेक है या कहीं और पेन है? मैम अभी रोक दीजिए जब मैं बोलूंगी तब। लोअर बैक में है? ओके, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 ये पेन कहाँ होगा? 10 मैक्सिमम, 0 मिनिमम?
3 to 4. 3 to 4 है, ठीक है। एक नंबर दे दीजिए, 3 है या 4 है? 4. हाँ 4. 4, ओके। Yeah. तो जो मैं बोलूंगी वो आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे ये करते हुए, और उसके बाद अपने हाथों को क्रॉस करके अपने चेस्ट एरिया पे रखना है और सारी गहरी सांसों को बाहर फेंकना है, लाइक लंबी सांस के द्वारा 7 टाइम्स आपको ब्लो ऑफ करना है, ठीक है अजय जी? Okay. परफेक्ट। क्लोज योर आईज एंड कीप रिपीटिंग, ये करते रहिएगा। आप कंफर्टेबल है इंग्लिश में? Yeah, no problem. हाँ, इवन दो लाउडली सर, सो दैट आई नो कि आप रिपीट कर रहे हैं। इवन दो आई एम हैविंग some pain in my lower back, some pain in my lower back, I still choose to heal and integrate that part of me. that part of me. I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am. exactly I am. As I am. As I am. Even though I have the pain in my lower back, I still choose to heal, H-E-A-L, heal and integrate that part of me. I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am. exactly as I am. Even though I have the pain in my lower back, I still choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am. exactly as I am. Now put your hands on your chest and blow off 7 times. Lung filling breath. Perfect. Better. Amazing. Yeah, it's much better now. Give me a number, sir. 0 to 10 में से आंख बंद करिए, कनेक्ट करिए पेन के साथ. Give me one number. Near around 1. 1, ठीक है। मैं 1 पे लाके छोड़ रही हूँ क्योंकि ये लोअर बैक का पेन है। जनरली 0 या 1 पे हमें रखना है। You know what is pain? Pain is nothing but pay attention in now. ठीक है। What I sense अजय जी के साथ में इधर is ये जो एंजाइटी है फ्यूचर में क्या होगा, वो फाइनेंसिस को लेके है और वो लोअर बैक पे आ गए, ठीक है। सो अगर आप इसको फोकस कर लेंगे कि ऐसा है, एम आई मेकिंग सेंस अजय जी? Yeah, definitely. यस, ठीक है। सो उसको आप ये बस ये वाला एफएम, ये वाला जो मैंने आपको टेक्निक बोला, इसको बोलते हैं इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक। इट वर्क्स विद एवरीथिंग, चाहे वो कोई पेन हो, चाहे इमोशनल पेन हो, साइकोलॉजिकल हो, कुछ भी, ओवर थिंकिंग हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, वर्क नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, फैमिली को नहीं मिल पा रहे, या जितनी भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ बोली है, सामने वाले ने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं समझ आ रहा, क्या फर्क पड़ रहा है? इवन दो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, I still choose to heal and integrate that part of me. Use it with anything and everything. This is the first aid of all the therapies. बाप of all the therapies, believe me. ठीक है? तो प्लीज आप इसको कभी भी affirmation written anywhere? मैं आपको ये शो कर देती हूँ. It's on the screen. Okay. यार, ठीक है? Emotional management technique. Even though I feel dash, whatever the feeling is, pain है, emotional issue है, जो भी है, ठीक है? I still choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself exactly as I am. It's also in my YouTube channel, Sonika. If you are clicking, ये YouTube में भी मिलेगा. I have done it with a group of teachers. ठीक है?
and then blow off 7 times. Simple. Thank you. Okay, so small tips क्या है, आपने सिर्फ अपना शाम को बैठना है, पेन पेपर उठाना है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप लिख डालिए, जो आप नेगेटिव सोचते हैं, हेवी थॉट्स, ठीक है, और उसके बाद में उनको रिप्लेस कर दीजिए हेल्दी लाइटर थॉट्स के साथ, यूजिंग द 6 P's. 6 P's: पॉजिटिव, प्रेजेंट, प्लॉजिबल या पर्सनल, प्रैक्टिस, परसिस्टेंस एंड बी प्रिसाइज. ठीक है, उनको उस पर डाल दीजिए, उनका विजन बोर्ड बना लीजिए, अपनी आंखों के सामने पोस्ट-इट्स या लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन, डू एनीथिंग विद देम, दे शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, राइट. इस तरह से काफी एंजाइटी खत्म हो जाएगा. एंजाइटी क्या है? फ्यूचर का इमोशन है. एंजाइटी का कोर फियर होता है, और फियर, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल टू यू. अभी आप पहुंचे ही नहीं हैं उस स्टेट में, आप एवे ही परेशान हो रहे हैं. सो अगर फियर को डील करना है तो 80% टाइम आप मेजर्स लीजिए, 20% टाइम सरेंडर कर दीजिए. अब जो आएगा वो देखा जाएगा ना. हम तो पहुंचे नहीं है अभी तक, सिर्फ एविडेंस है जो अपीयर हो रही है कि वो रियल है. इट्स नॉट द रियलिटी. ओके, बाकी आई एम श्योर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आपने कहे हैं, दैट यू कैन, पीपल आर स्टिल जॉइनिंग इन, आई एम सरप्राइज्ड. ठीक है, सो क्या है वो, कैसे भी आ रहा है. लाइक अब बात हो रही है बैलेंस ऑफ फीमेल्स के लिए. अगेन, फीमेल्स ने अगर अपने माइंडसेट को बैलेंस कर दिया तो मैक्सिमम बैलेंस वो कर सकती हैं. प्लीज टेक रेस्ट, 10 मिनट्स का ही सही. पता है क्या होता है, पूरा दिन भर आप कंटिन्यूसली अगर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके माइंड की, कॉन्शियस माइंड की फाइल्स भर जाएंगी, मैसेज यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एंगर, पैनिक सब करेंगे. प्लीज 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, नैप ले लीजिए, आंख बंद करिए, गो ऑफ इन योर रिलैक्सेशन जोन. फाइल्स नीचे जाएंगी, अब स्पेस हो जाएगी, अब आप काम कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द साइंस बिहाइंड योर फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर. ठीक है, वर्किंग आवर्स वगैरह वो मुझे नहीं लगता, अगर आप थॉट्स पे फोकस कर देंगे कि हाँ ठीक है, उनको मॉडिफाई करके कर देंगे तो दिस वोंट बी एन इशू. मेंटल पैनिक वो मैंने बता दिया है, बैलेंस बता दिया, नॉन वर्बल को कैसे डील करना है. हस्बैंड को लेके जजमेंट, सोनिका जी, वर्किंग लेडीज के हस्बैंड सिर्फ फोटोज डालते हैं स्टेटस पे कि हमारी लेडी वर्क कर रही है. Probably, I mean, it is something which I have noticed during this lockdown, that whenever you pick up your phone and you can see this only, then you know I've stopped looking at it now. So you know what, you should be happy probably. You know, जो males हैं, मेल अगर हम ईमो कैटेगरी, अगर हम ओरिजिन से जाते हैं तो फीमेल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट मसल, मेल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन मसल. दैट वाज इनिशियली, जब से हमारे डिवीजन ऑफ लेबर हुए, एडम एंड ईव आया ना, मस्कुलर मेल होगा, वो हंट करेगा, प्रोटेक्शन देगा, मैस्कुलिन रहेगा, राइट. फीमेल चाइल्ड रेयरिंग एक्टिविटीज में जाएंगी. धीरे धीरे वो की एंड कास्ट स्टोरी हो गया, क्योंकि हमने रूल्स वगैरह लगा दिए. एक दिन मेल बोलता है मैं थक गया, मैं काम नहीं करूंगा, फीमेल को बच्चे पालना है, वो तो उठ के काम लेगी, भाला लेके भागेगी मारने के लिए, हंट करने के लिए. That's where the change happened, right? Now if you go back to this origin source, then probably if your husband is doing this, then you should be thankful कि वो आपको appreciate करे. See, in this duration also my wife is doing something. वो brain से सोच रहे हैं. No, it is not that he's doing. It is something I said that, you know, since I cannot do, or I am not at all, you know, cooking So all the time, everything inside of you. That is your story. Instead of judging him for doing this, you need to look within. What is your lesson? Right. है ना, मैं जज कर रही हूँ ना, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, मैं घर पे नहीं कुक कर पा रही. Right. उसको फोकस करिए. Right. Right. अब उसको जज कर दिया तो रिलेशनशिप में गड़बड़ होएगा. Don't do that. True. Okay. Right. Then गिरिराज जी, more than 10 hours I've sorted. Social distances की मैंने बता दी बात. 4 AM का वॉक प्लीज करिए. वॉक पर जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह 4 बजे कर रहे हैं. अगर इफ दैट इज गिविंग यू फ्रेश एयर, डू दैट. अदरवाइज इवनिंग या घर में योगा वगैरह की भी, एक्सरसाइज की भी बहुत सारी बातें हैं. अगर आप नितेश जी या चेतन जी को कनेक्ट करेंगे तो डॉक्टर आदित्य सोरल है हमारे, उन्होंने बीच में कुछ स्क्वाट्स वगैरह किया, कैसी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, उसका वीडियो भी डाला था. मे बी आई कैन शेयर इट विद सोनिका, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको दे दूंगी. शी कैन शेयर इट विद ऑल ऑफ यू कि क्या छोटा मोटा कर सकते हैं. ठीक है. Then overthinking I've taken care of. As I said, you know,
अब ये जो हमारा क्रिटिकल फिल्टर है, वो लेयर ऑफ जजमेंट है, वो दुनिया का हमारा चश्मा है देखने का, ठीक है, दुनिया को हम जैसा देख रहे हैं, और उससे क्या होता है, हम जज करने लगते हैं. So you know the name of the game is to stop the blame. Do not blame yourself, do not blame others. The more you will keep on blaming, the story will keep on repeating. Karma है, बैट बॉल में वाइट बॉल दे रही हूँ, आप मुझे वाइट बॉल वापस देंगे ना, ब्लैक बॉल दूंगी तो आप ब्लैक बॉल देते रहेंगे, अब मुझे वाइट दे देनी, इवन बेटर कुछ नहीं देना. खेल लीजिए, कैसे खेलेंगे, राइट, सिंपल. ओके. News, please stop the news. News itself is heavy energy. अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, देखियो मेजर्स, सरेंडर, जब होगा तब देखना, राइट. पहले फोकस कर लीजिए, हेल्थ को बना लीजिए, डिस ईज जो माइंड में है उसको बैलेंस कर लीजिए, तो नहीं होगा आपके साथ. न्यूज को प्लीज सिर्फ वंस एट अ टाइम देखिए, पूरा दिन भर में एक न्यूज काफी है. हाँ, इतना हो गया. अननेसेसरी पैनिक वाकई है ये. When I started my journey, अभी कोरोना के साथ में मैं नोएडा में थी और मेरे पास मेंटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से. कोई हांगकांग बैठा है जो चाइना के बिल्कुल बाजू में है, कोई सिंगापुर है, कोई इटली में बैठा है, कोई कहीं और है. दे वर ऑल अपडेटिंग मी. मुझे पैनिक पहले हो गया, ठीक है. सो नोएडा से सारा पॉडकास्ट का सामान उठाया. मुझे ये समझ में आ रहा था यहाँ नहीं रुक पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरे घर तो इधर है अजमेर में. नोएडा से जयपुर पहुंची, जयपुर से बाकी पॉडकास्ट का सामान उठाया. ये पता था लंबा जाने वाली, तो पॉडकास्ट फोकस करूंगी अभी, जो 1 साल से पेंडिंग था. एंड देन आई रीच अजमेर, मेजर्स लिए, फिर सरेंडर कर दिया. अब आएगा तभी देखेंगे, ठीक है. और मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. ओके. सो आई गेस विद दिस आई वुड नाउ ज्वाइन इन मेरा दुबई वाला सिचुएशन. मुझे नहीं पता उधर क्लास शुरू हुआ है या नहीं. सो I hope this is fine with you. और कोई क्वेश्चन है आपके पास में तो पूछ लीजिए, या मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर देयर. यस गोविंद जी. मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होता है कि अपना जो मूड होता है ना, दूसरे के रिएक्शन पर डिपेंड होता है, तो क्या अपन डिटेच कर सकते हैं ये सारी बातें कि भाई कोई कुछ सामने वाला कह रहा है, सपोज मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेरे 100% लगा रहा हूँ, अब बॉस कहता है कि ना ठीक है जो भी है, मैं मतलब ऐसा कुछ कह दिया कि यार ये तो कोई मतलब ही नहीं निकला ये सब करने का, और उससे क्या होता है कि छोड़ो ये, मतलब फिर क्या सेंस निकला, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया, तो अपन कैसे डिटेच करें अपने आप. आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ. चार्ज क्या है? इमोशनल चार्ज है. अब मेरी इमोशंस मैंने किसी और के हाथ में कैसे दे दी, मुझे वो देखना है ना. मेरी इमोशन तो मेरे है ना. जैसे मैंने कहा, टेंशन से शुरू हुआ है ये व्हाट्सएप वेबिनार. आज व्हाट्सएप पे भी क्लासेस लेती हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ आजकल, राइट. तो वेबिनार टेंशन से शुरू हुआ, मैंने तो टेंशन नहीं ली. क्या मैं अपनी जिंदगी का चार्ज ले सकती हूँ? जब क्राइसिस होता है ना, माइंड क्राइसिस जब परसीव करता है, 2 ही चीजें करता है वो, फाइट करता है या फ्लाइट करता है. और एक थर्ड है आजकल जो आया है नया, प्ले डेड रिस्पॉन्स. प्ले डेड क्या है? यू डीपली प्रेस इट इन, वो डिप्रेशन बनता है. तो डिप्रेशन में ना जाइए, फाइट कर दीजिए या फ्लाइट कर दीजिए. Even though my boss is shouting at me, I still choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself. Blow off. छोटा सा टेक्निक दिया है, फर्स्ट एड, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ठीक है. मैडम ट्राई करेंगे. वैसे ये कहने में थोड़ा आसान है, पर अगर ट्राई करेंगे और अगर बेटर फील करते तो. करेक्ट सर. ये सिर्फ आपको अपना चार्ज लेने की बात है. दुनिया में सिर्फ एनवायरनमेंट वही मिल रहा है जो आपको सीखना है उसका. मैं वापस उस पॉइंट पे आऊंगी. अगर कोई और आपको इमोशंस को इम्बैलेंस कर रहा है, यानी कि आपने अपना चार्ज नहीं लिया, आप अपने माइंड से नहीं ऑपरेट हो रहे हो. वापस अपने माइंड में आइए, अपनी पूरी चेतना को अपने पास बुला लीजिए, प्रेजेंट में आ जाइए. वो जो फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो तभी आएगा जब प्रेजेंट को आपने 100% रह के जी लिया. अगर 100% रह के ये वाला वेबिनार नहीं सुना तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे, फ्यूचर में नहीं पहुंच पाएंगे फिर अच्छे से. पूरा सुना है, पर फिर भी क्या होता है पर कि ये हर सिचुएशन के साथ में, दिस इज एन एग्जांपल सर, है ना. ये चीजें मैटर करती है, चाहे घर पे भी अपन हैं, अगर काम कर रहे हैं, अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करता है तो इरिटेशन होती है. इरिटेशन को कैसे दूर करें, मतलब so where is the irritation coming from?
पहला स्टेप ये देखिए कि इरिटेशन आ कहाँ से रही है। दूसरी चीज कि दूसरों को आपने इतना हक कैसे दे दिया कि वो आपको इरिटेट कर पाए। तीसरी चीज, क्या आप अपने आप से इरिटेटेड हैं या नहीं हैं? क्या अपने आप से खुशी हैं? भाई मैं एक ग्लास रखती हूँ, आप मेरे सामने आते हैं, मैंने खाली ग्लास आपके आगे रख दिया, राइट? कितना यूजफुल होगा आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने उस खाली ग्लास में अभी पानी डाला फिर रखा, अब कितना यूजफुल है? पर तभी यूजफुल है जब आपको प्यास लगेगी। इसमें भी कंडीशन अप्लाइड, राइट? तो क्या मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूं या मैं अपनी इनकम्प्लीटनेस के साथ सामने दूसरों के बैठी हूं? जब मैं खुद कंप्लीट हो जाऊंगी तब सामने वाला हमें अप्रिशिएट करेगा, वो भी तब जब उसको प्यास लगेगी। पर मीनवाइल क्या मैं अपने साथ में खुश हूं? इनवर्ड अप्रोच सर। कैमरे में ना दो चीजें होती है, एक कैमरा होता है, मोबाइल में दो होती है, कैमरा होता है, एक सेल्फी मोड होता है। सेल्फी मोड पे चले जाइए ना और कहानी वहीं से चेंज होगी। सामने वाले सिचुएशन बदलना या सामने वाले को बदलना, इस परसेप्चुअल इल्यूजन आप नहीं बदल पाओगे। सबसे बेटर है अपने आप को ही बदलो। पूरे ग्राउंड पे मैं नंगे पैर चलना चाहती हूँ इसलिए घास लग जाए, इम्पॉसिबल है। मैं जूते पहन लूं, मेरे पैर सेफ रहेंगे, पॉसिबल है। सही है मैम। मैं एक चीज कह सकता हूँ? यस विकास जी। मैं आपने भी एक बात बोली थी कि सामने वाले को चेंज नहीं करना चाहिए, खुद को अपने को बदलना चाहिए। तो इस पे एक पुरानी कहावत है कि पहले मैं होशियार था, दुनिया को बदलने चला था, अब मैं समझदार हूँ, खुद को बदल रहा हूँ। करेक्ट। तो दुनिया एक्चुअली नहीं बदलेगी। हाँ, नहीं बदलेगी। और बिलीव मी, पता है विकास जी, जब आप अपने आप को बदल लेंगे ना, तो क्या बदल रहे हैं आप? अपने थॉट्स को बदल रहे हैं, और जो मैंने फ्लो चार्ट बताया है उससे आपकी रियलिटी बदलेगी। अब जो चीज दुनिया हमारे आपसे हाथ में अलग है, तरीके से जो बात चीज करेगी। हमारे हाथ में है हम उसी को चेंज कर सकते हैं। सामने वाले पे हमारा कंट्रोल हमसे कम है, हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल 110% है, तो हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं पहले। सर फिर भी उस पॉइंट पे फोकस करिए, जब आपने अपने आप को बदल लिया, आपका थॉट पैटर्न बदलेगा, उसके बदलते इमोशन बदलेगी, इमोशन के बदलते फीलिंग बदलेगी, फीलिंग के बदलते एक्सपीरियंस बदलेगा, सामने वाला हमको अलग तरीके से ट्रीट करेगा, और उसको ट्रीट करते ही हमारी रियलिटी बदलेगी। तो खुद को बदलेंगे तो दुनिया, एनवायरनमेंट चेंज होगा। कमिंग बैक टू द थर्ड एंगल, राइट? ये सब एसोसिएटेड है। ओके, any other question? Quick 2 minutes I have. All right, then I guess I should take your leave now. मुझे दुबई शुरू करने का है। Thank you so much. Thank you so much for this wonderful session. I mean, I thought that, even this time, even it is 11:40 now, and even I think that even for, I myself, I can say for myself that I can listen to you for another 2 hours also. Thank you. Right. Yes. So thank you so much for this wonderful session, and I hope that, in future also we'll be conducting such sessions. Sure. Thank you. So on behalf of Dot Squares and everybody who has attended the session, thank you so much. Thank you ma'am. everyone. I Thank enjoyed you, it ma'am. as Thank you, much. ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Stay safe. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, bye-bye. Okay, thank you, ma'am. Stay safe Thank and you, stay warm. Chetan and Team Eternal, for connecting me to Monica and the team. All right. Yeah. Bye. 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 Bye-bye. Take care. Bye. Bye.